इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। आज हमारी जो ये स्ट्रेट डाइव की वीडियो है, जनरली हम यूट्यूब लाइव करते हैं, बट बिकॉज आई वाज ऑलरेडी इन ए यूट्यूब लाइव लाइक 2 hours बिफोर, not on trading topics. I was speaking in some events, but that's fine. That's the reason I didn't want to choose to then do 2 YouTube lives in a day, but that's okay. Ultimately, you guys need to see the video. Now, आज का जो topic है, today's topic is how to do intraday scalping, right? तो मेरे स्ट्रेट टाइप वीडियो में जनरली कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस होते हैं, ठीक है। तो इंट्राडे स्कैल्पिंग इफ यू वांट टू डू, एज आई सेड बिफोर मेनी टाइम्स इन द ग्रुप, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल बिकमिंग एन इंट्राडे ट्रेडर रिक्वायर्स a lot of talent. Okay, intraday trading is not everybody's cup of tea. Okay, so if you are an intraday trader, make sure that you give that time. So few people ask, I don't have time and all the stuff, can I become an intraday trader? Probably then do not become. Like if you see me, I become an intraday trader like 5 years kind of back. For last 5 years I have been doing intraday trading. Before that I could not, because I was working in some jobs where I need to be in office at 9 o'clock, work till late night and all those. So I used to do positional trading. Yes, I used to look at charts in between, but I never used to do intraday trading. In last 5 years, when I have moved to positions where I can control my own timing, when I work, when I do not work, whether I work after lunch in a day, right? I set up my own meetings, right? Nobody is controlling me. So during that time I decided that I would probably give some time into intraday trading, right? When nobody is monitoring my screen. So point जो मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप स्क्रीन के सामने नहीं हो, पहले तो इंट्राडे मत करो, एंड अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली स्क्रीन के पास रहना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं कि ट्रेड लगा दिया और आप स्क्रीन छोड़ के चले गए। हाँ, अगर स्टॉप लॉस मतलब कुछ पॉइंट आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपने प्रॉफिट लॉक कर दिया और उसके बाद छोड़ दिया, चलो मार्केट स्टॉप लॉस अगर उड़ाएगा तो ठीक है, हमें छोटा मोटा प्रॉफिट जो भी होगा हम वो लेके निकल जाएंगे, देन इट्स ओके। अदरवाइज आपको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा, ठीक है। सो इंट्राडे ट्रेडिंग एंड स्कैल्पिंग इज बेसिकली आइडियली ए फुल टाइम ट्रेडर्स जॉब, बट यू कैन स्टिल डू पार्ट टाइम, बट यू कैन डू लाइक in a chunk. You decide if your office allows you, especially IT people, right? They can go office at 11:30, work late night. So to make your trades from 9 to 11:30, 2.5 hours, okay? Or probably do a trading after 11 o'clock till let's say 3:30. So you can choose your own time even, but the point I'm trying to make is you have to give a dedicated time to that trading window, otherwise it is difficult. Okay, that is the first thing. Now as a day trader, what are the things that you need to consider, or very common stuff that you need to trade as an intraday trader? Because intraday trading mein the problem is, if you look at a positional trading, right? So for example, you want to capture this downfall, let's say, okay, I have explained it, how you could have captured this downtrend based on advanced price action, okay, up 1,000 point move of Nifty in one of my group. But let's assume that you have identified that advanced price action and you were able to capture this move, right? So the amount of time you had actually from 31st August to 24 September, I would not have captured the exact bottom, let's say here 21 September, right? So almost 20 working days, 15 trading days, right? And you could have made a good profit in positional sell ideally, okay? Now intraday trading mein you do not have this kind of luxury, okay? So intraday trading mein you need to apply a lot of concepts together, okay? Because you don't know based on which price action market is going to give a move on the upside or the downside, okay? Sometimes the people just take trade based on the volume itself, okay, no price action at all, okay?
So that is also possible. So intraday trading में as I was telling, I generally compare the intraday trading as T20 of the cricket game compared to a test basically match or a one day match, right? Positionals are like one day matches. Test matches is like value investing, right? You invested, then you forget for 10 years. Ultimately, market will go up anyway. You will never be in loss, right? Now, few people sometimes ask me the question that a lot of people right now do algorithmic trading, right? Big FIIs and DIIs. The system is actually punching the orders. So, how the retail trader can beat them? So they cannot beat them in an intraday kind of trading, but definitely you can beat them on a longer term, right? So I have few stocks in the US market. India to abhi I don't have much. I would need to recreate. So I have bought like 6 years back, 7 years back, something like 10 years back, right? There was hell and heaven difference. There are multiple falls came and all those and everything. But if you look at in a few stocks in last 5 years, even in a not good moving stocks, I got like 300-400% return without doing anything. So just invest and forget, right? So anyway, that is not the part of our topic. The part of our topic is how to do intraday scalping and make some money every day. Do intraday not to create wealth for you. Okay, wealth creation can only happen through value investing on a longer term investing. Intraday trading, try to make profit which is going to considered as income to you. Okay, so that means what? So if you let's say have a capital of, for example, you have a capital of 1 lakh, right? And you should decide that I should make 2% of this every day. It's very easy to make, especially if you are doing in Bank Nifty and Nifty. That means 2000 rupees every day would make you 40 to 50,000 rupees monthly, assuming that you are not losing any trade. Okay, you are not losing any trade. That is the main secret here. Otherwise, you will end up in 25, 30,000 and all those. So the success ratio, how do you make it? Okay, I'm just taking a 1 lakh capital because most of the retailers would be in this range only to start with. The first discipline that you need to make, you do not overtrade. That means you will make only 2 to 3 trades per day, max to max. Okay, and I have shown you in one of my ICICI bank account before also. Okay, the success ratio of mine, I have been trading for a longer time, so my success ratio would be a little bit bigger. So I showed you there that my success ratio is around 90% in that account. What is the reason? The reason is I do not do more than 2 trades per day. That is also intraday account, but I do not do more than 2 trades per day. ओके, दिस हैज, ये जो डिसिप्लिन है ना, ये डिसिप्लिन आना बहुत ज़रूरी है. अगर ये डिसिप्लिन आप में नहीं आएगा, बिलीव मी, इंट्राडे में जितना कमाओगे उससे डबल आप लॉस करके जाओगे इंट्राडे में. ओके, there is no genius trader in an intraday which can capture the market move, every market move and all those things. What we are trying to do, इसमें मैं generally डैम का एग्जांपल देता. Okay, we'll come back to here. Let's do some psychology or GAN analysis, right? So डैम वाटर ऐसे फील होता है ना, ये देखो ऐसे होता है, right? This is what happens at 9:15, correct? The gates are open. This is the example I give to everybody. The gates are open, right? 9:15, and the number of trades in terms of volume, right? 9:15 to first half hour is a very volatile market. वहाँ पे very big volume में trade होते हैं. Now few people what they do trade in that volatility market, but sometimes they gain, sometimes they lose. It's a very risky game to put your trades at 9:15. Never. Very, very risky. You might be right some of the time. Like for example, Bank Nifty started the day here, for example, at 9:15, and
failed on 500 points in 5 minutes, let's say. You might miss the trade, that's okay, but never trade at 9:15. Do not put a blind trade. On that day, you can just make 500 rupees from your 1 lakh capital, let's say, for example. Do that, but do not make a trade at 9:15, even if you are doing intraday scalping. Clear? Now, at 9:15, this is the flow. Okay, so where the retail trader needs to be there, let's go to this example. This is exactly 9:15 trading. Okay, the retail trader has to be here, somewhere here, after the high volatility period ended in intraday. I'm still talking about intraday. Okay, now what retail traders try to do, they actually try to catch all this water. Okay, so consider ये पूरा पानी को 500-600 points in Bank Nifty in a day's movement. Okay, for example, they try to capture all this water. Drum leke means they will put bigger quantity to get bigger profit. Okay, that is how you should not trade in an intraday. First thing you need to remember that make intraday your daily income strategy, not a wealth make strategy. Okay, as long as you understand that, then आप स्कैल्पिंग इंट्राडे में सही से कर पाओगे. यहाँ पे आपको करना क्या है, यू जस्ट नीड टू टेक ए mug only. To give you an example, take only one mug, take 1 mug of water, come back to the shore, put it in your drum, then go back, take another mug and come back to the shore and put it in the drum. ड्रम में डालते रहो, जिसको हम बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है. तो मग से आपका ड्रम बनेगा आइडियली. बिलीव मी, दिस इज गोइंग टू वर्क फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू. Okay, so if you are making this 2000 rupees every day, it depends upon every intraday trader. If you have capital थोड़ा बड़ा है आपका, तो आप 2000 की जगह 20,000 कर दो. Right, 20,000 करके you can actually do a trading. That is not a problem, right? So, but the point here is, okay, 2000 हो या 20,000 हो, this is an income strategy, scalping. Okay, intraday scalping is an income strategy. First point is, do not make more than 2 to 3 trades per day. Otherwise, you will lose in the 4th trade, 5th trade for sure. Okay, over trading mein you will make a lot of loss for sure. That is a guarantee. That's from my experience. Okay. Now, in this capital, when you are trading, now let's come how you should enter and exit your trades. Right? कैपिटल हो गया. पोजीशन साइजिंग अपने हिसाब से ये देख लेना. 2000 रुपीज़ इफ़ यू वांट टू मेक बैंक निफ्टी में, इफ़ यू आर डूइंग इट इन 2 lots, okay, then you have to capture how many points. If let's say I do 2000 divided by 25, 80 points. You need to capture 80 points to make 2000 rupees in Bank Nifty if you are playing only in 2 trades. Okay, बैंक निफ्टी easily आपको 80 points दे देगा. Okay, generally एक कैंडल में 80 points दे देता है. Sometimes you need to wait. That's a different thing. We will come back to there how to do a trade in intraday, right? So to think of, see, people generally capture 200 points also in Bank Nifty. Okay, but if you have seen my channel, sometimes I close my position in 50 points also. It doesn't require that you need to only capture 80 points every time only. You can capture 50 points 2 times 2. Okay, so if you look at this kind of candles, if you get one candle like this, it itself will give you around 864 to 837. Okay, around, if you look at 30-40 points. Okay, one candle. If you take this move, you are done probably for the day. Just one move. And you might have seen in my channel or in the group, I just do 1 or 2 trade and then I'm done, right? If you capture this move, then you are done, probably finish. Or if you capture this move, probably instead of 2000 you will end up in making 5000 per day in just 2 lots. Okay, it depends how you are capturing the move. We'll come to there, right?
Now, if you want to, first you understand the capital, you understand the position sizing, like how many lots you want to play, you know that how much of money you want to make from the market daily as an income strategy. Remember the mug and drum example that I have given to you, okay? And believe me, if you do in this kind of discipline, you will make smaller money, but you will make consistent money. Okay, it doesn't make sense making 1 lakh in a day and losing 4 lakh in next entire week. So yeah, ultimately it is minus 3 lakhs. What you need to convert from your intraday trading is a green, healthy salary kind of account. Okay, if you can do this, that is going to be wonder. That is going to wonder for you. Do wonder for you. मैं करता हूँ generally. Okay, मैं करता हूँ. But my capital is a little bit larger and my daily targets are a little bit larger. If somebody asks what is your daily target, it's around 40 to 50k. It doesn't mean that I make every day 50k. Sometimes I lost like 70k, 80k losses also I have shown it in the group, right? But that is very rare, right? In a month, I generally get 2-3 days where I lost around 1.5 lakhs. But rest 15 days, if you are making on an average 40-50, and on expiry day I go up to 1.5 lakh, 2 lakhs, 70,000, 80,000, depending upon the trade and its profit. Okay, because profit, you can't guess how much profit you are going to get, but you know how to control your losses, right? Okay, that is the main thing, where you actually need to control losses and make bigger profit to increase your capital. Okay, or multiply your capital ideally. Okay, so that's my thing. Let's not discuss my stuff. So when first now you have a little bit of discipline, you know how many orders you need to place in an intraday to become successful. Okay, I have seen people putting 80 orders, 100 orders in a day. It doesn't make sense. Okay, I do not go more than 4 trades in any account in a single day, even if the market is in my favor. Okay, but anyway, I can't put more emphasis on this for the number of trades. Okay, now let's come back and see. You can ask me that how you are going to enter and how you are going to exit while you are doing scalping. Okay, now first of all, the entry has to be based on price action and the amount of knowledge that you have. Okay, correct. So there are many things based on which the entry can be done. Okay, now if people have stayed in our group, we have told this like by many members in our group, very seniors members. We have been telling this from 1.5 years from when the group has been formed. In an intraday, the common pattern that you can trade is a M and W pattern. M and W pattern in a lower time frame. Okay, this is we call double top and double bottom. Okay, this is we call double top and double. This is double top. Okay, this is at a lower level. That's okay. Still, it is considered as a double top. You trade on the neckline break. In Bank Nifty and Nifty, you can generally see these kind of patterns very commonly on an intraday. Okay, in a 1 minute and 3 minute time frame. तो बैंक निफ्टी में 3 minute time frame में you can trade. Okay, so you can put multi time frame charts, 1 minute, 3 minute, 5 minute. Bank Nifty is volatile, so time frame has to be little bit lower. It depends what kind of stock, with what volatility, with what beta you are trading. Depending upon that, your time frame will reduce or increase. If the stock is slow moving, go for a 15 minute time frame. If the stock is highly volatile, go for a 5 minute time frame. Okay, I'm talking about Bank Nifty example. Bank Nifty mein we have multiple time frames, 1 minute, 3 minute, 5 minute. Okay, that is what is the time frame in which you need to trade. You might see a lot of patterns like this. So similarly, M mein you take a sell, and in terms of W you will take a buy ideally. Okay, this is a very common pattern. This is very common pattern, which is basically comes from the theory of chart patterns in price action. Okay, you can go ahead and do this back testing across Bank Nifty's trade. Okay, in various time frames.
and you will get it. You will very easily get it. Okay. Then there are many other patterns that I have told in the group also. One of the common pattern that you see Bank Nifty, especially in a up move, right? So you see a ascending triangle with a very high movement. So for example, yeah, you can see this pattern. Let me draw you so that you can understand this one. And I have repeatedly told this in Bank Nifty. Whenever you see a pattern in Bank Nifty like this, never sell Bank Nifty. Any ascending triangle, we always take a buy on positive side. But in this case, you can wait for a longer target. Look at the kind of target it has given. Okay, from an ascending triangle. And on the breakout, you can trade, or on the retest or consolidation, you can also trade. Okay. Now there are different ways how you can trade. So for that you need to understand all the theories of price action for sure, all the chart patterns and everything else, right? What are the topics? I'll just come down there after a time. So in this kind of pattern, never sell Bank Nifty. What people do actually, I mean especially scalpers, even if new people to hai hi hain, but especially scalpers, they always take a counter trade. They always take a काउंटर ट्रेड, अज्यूमिंग दैट देखो ये मोमेंटम आया तो लोग सोचेंगे अरे अभी गिरेगा, और ये जो गिरेगा ये 10 पॉइंट हो 15 पॉइंट हो जो भी है वो पकड़ के स्कैल्पर मार्केट से निकल जाते हैं, राइट? लाइक फॉर दिस वन, मार्केट इतना गिरा, नाउ आफ्टर दैट इट रिवर्स्ड, द स्कैल्पर्स विल प्रोबेबली एंटर हियर एंड एग्जिट हियर. ओके, जो सुपर फास्ट स्कैल्पर्स होते हैं, स्कैल्पिंग इसी को ही बोलते हैं. Scalpers generally do a trade in counter, generally reversal kind of trade. Most of them. जरूरी नहीं है कि every scalper does that. Some scalpers do a breakout trading also. Some scalpers do support and resistance trading. I'll tell you that what are the kind of scalping traders are there in the market probably, right? So this example that I have given, ये जो example है, ये example है breakout trader का. स्कैल्पर है बट ब्रेकआउट ट्रेडर है. दैट मीन्स व्हाट डू मीन बाय फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैल्पिंग. जो स्कैल्पर ट्रेडर होते हैं दे डू नॉट स्टे इन द मार्केट फॉर ए लॉन्गर टाइम. लंबा टाइम तक मार्केट में रहते नहीं हैं. देखो ये स्कैल्पर अगर यहाँ पे एंट्री करके यहाँ पे एग्जिट कर देता, उसको जितना प्रॉफिट मिलता, ये 1 2 3 4 5 नेक्स्ट 30 मिनट्स वेट भी करता ना तो भी उतना उसको उतना ही प्रॉफिट मिलता. आर गेटिंग द एडवांटेज ऑफ स्कैल्पर्स. The scalpers generally capture the big fast moves, put large quantity, जैसे 1000 क्वांटिटी यहाँ पे लगाया बैंक निफ्टी में, 610 से इट वेंट 636. हाउ मेनी पॉइंट? 26 पॉइंट्स में से ऑप्शन में अगर कर रहा है एट द मनी में, ही विल गेट इजीली 20 पॉइंट्स. ओके, आउट ऑफ द मनी में कर रहा है तो 10 पॉइंट्स ही मिल जाएंगे. अज्यूमिंग एट द मनी बाइंग है 20 पॉइंट्स इंटू 1000, 20,000 डन, exit, finish, and the trade is finished in 5 minutes. That is what scalping is. Okay, now how many types of scalpers are there? See, I have given one example here. ये जो example है ये breakout scalper है. Okay, that means ये pattern breakout पे trade करेगा, channel breakout पे trade करेगा, trend line breakout पे trade करेगा. Okay, support resistance के breakout पे trade करेगा. These are breakout traders. Some people are basically support resistance traders. That means the difference between a breakout trader and a support resistance trader is breakout trading can happen anywhere. It can happen based on a trend line. It can happen based on a chart pattern. It can happen at resistance and support too. When we call a resistance breakout happened, actually, if actually you see like this one, you're seeing this candle, this is a blue candle which is a very very highly volume green candle. Now this resistance, assume that this is a resistance, this resistance was broken with a breakout of this candle and then sustained. And if it is sustaining, look at the market is respecting the level again as a support here, right? This is called resistance breakout trading. Okay, and this is basically the general resistance trading you have. That means at a resistance you sell,
एट दिस रेजिस्टेंस आपको सेल करना चाहिए था क्या? नहीं, क्योंकि ये ब्रेकआउट हो गया, रेजिस्टेंस पे सेल नहीं कर सकते, यहाँ पे सेल कर सकते थे. ओके, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस इज ए ब्रेकआउट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग एंड दिस इज ए सिंपल कॉमन रेजिस्टेंस ट्रेडिंग. ओके, कॉमन रेजिस्टेंस ट्रेडिंग क्या होता है? रेजिस्टेंस पे सेल, हियर रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट पे बाय, you buy on a resistance breakout. Okay, so these are the some of the very common. I have just given you 2 to 3 examples, 2-3 एग्जाम्पल दिया है आपको. ठीक है, आज स्कैल्पर जैसे मैं बोला आपको बहुत टैलेंटेड होना चाहिए छक्का मारने के लिए, जैसे T20 में ना. दैट मीन्स यू शुड नो ऑल द ट्रिक्स. दिस इज ट्रिक 1, दिस इज ट्रिक 2, दिस इज ट्रिक 3. देयर माइट बी 100 ट्रिक्स बेस्ड ऑन विच द मार्केट मूव्स, and all these tricks we call the price action trading tricks, right? So you need to understand what are the different ways the price makes an action in a market. Okay, there are different concepts, a lot of concepts that you need to study. Okay, but as a scalper मैं आपको अभी just 3 एग्जाम्पल दिया हूँ छोटा छोटा. ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग आपने बहुत यूट्यूब वीडियो में देखा होगा, तो आपको पता होगा कि ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग करना कैसे है. तो ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग में आइडियली ब्रेकआउट ट्रेडिंग ही होता है या रीटेस्ट ट्रेडिंग होता है. सो फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे नीचे आया, ये रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट कर से फिर आप दोबारा सेल ले सकते हो एज ए स्कैल्पर. ओके, एज ए स्कैल्पर दोबारा सेल ले सकते हो. तो आप यूट्यूब वीडियो में जाके देख सकते हो कि ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग कैसे होती है. ये मैं आपको एक चार्ट पैटर्न का ट्रेडिंग बताया. दिस इज वन चार्ट पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल, जिसमें वी लुक फॉर द बाय साइड ना. असेंडिंग ट्रायंगल है, डिसेंडिंग ट्रायंगल है. ओके, देन यू हैव हेड एंड शोल्डर्स है. एवरीबडी नोज अबाउट चार्ट पैटर्न. जिनको पता नहीं है चार्ट पैटर्न पढ़िए. और वो जो कॉन्सेप्ट है वो सारा कॉन्सेप्ट जो है ना, आप सोचो कि आप 4 साल का इंजीनियरिंग करके आए हो एंड यू आर गिविंग द फाइनल वाइवा इन एग्जाम, वेयर बेसिकली द क्वेश्चन कैन कम from any 40 subjects that you have studied in last 4 years. Intraday scalping is that complex. Okay, that means पूरा 40 सब्जेक्ट 40 सब्जेक्ट्स जो पिछले 4 साल में आपने पढ़े हैं, वो सबके थियोरीज आपके दिमाग में होने चाहिए रजिस्टर. यू कैन नॉट फॉरगेट. मैं नहीं बोल रहा कि सब याद रखो, बट कॉमन चीज़ें याद रखो. 40 नहीं तो कम से कम 30 पॉइंट्स तो आपको, सब्जेक्ट की चीज़ें तो आपको याद आनी चाहिए, सो दैट आप वाइवा में अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 में 30 क्वेश्चंस आप गलत करो और 70 क्वेश्चंस आप करेक्ट करो. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल बीइंग ए सक्सेसफुल स्कैल्पर. 100% आपके ट्रेड सही नहीं जाएंगे. ओके, अगर आप 60% भी हिट मार देते हो ना, देन स्टिल यू आर आइडियली ए सक्सेसफुल स्कैल्पर. ओके, इसको याद रखना, ये साइकोलॉजी है. इसलिए मैंने इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल दिया है क्योंकि हमने इंजीनियरिंग की है. ओके, एनीवे, ये 3 एग्जाम्पल आपको याद आ गए, 1, 2 and 3. आई हैव जस्ट गिवन यू 3 एग्जाम्पल. वीडियो में सारा कुछ तो कवर नहीं कर सकते, तो अब आज के इसके बेसिस पे ट्रेड करो. कुछ लोग कैंडल स्टिक के बेसिस पे ट्रेड करते हैं. एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ कैंडल स्टिक के बेसिस पे. जैसे ये वाला ट्रेड है, राइट. मार्केट वॉज फॉलिंग एंड दिस इज ए ह्यूज पिन बार कैंडल. The moment you see a huge pin bar candle on the bottom side when the market is coming down, गिर रहा है, उस केस में you can actually do a buy. यहाँ पे भी अगर बाय करता ना स्कैल्पर, ठीक है, यहाँ पे भी प्रॉफिट निकाल के जाता था आराम से. 20,000 सेम 1000 क्वांटिटी, 20-30 पॉइंट्स, 20-30,000 आराम से लेके जाता है, लेके निकल जाता है, फिनिश. क्योंकि यहाँ तक अगर जाएगा तो 10,000 ज़्यादा मिलेगा, बट यहाँ पे नहीं निकलेगा ना, और मार्केट ऐसा मूव दे दिया तो उसका 20,000 लॉस हो जाएगा उल्टा. ठीक है, तो स्कैल्पिंग में मेक श्योर दैट यू मूव आउट ऑफ द मार्केट एज फास्ट एज यू कैन. दैट मीन्स अगर आपकी नॉलेज सही है, अगर आपकी ट्रेडिंग की एंट्री सही है, जैसे ये एग्जांपल दे रहा था ब्रेकआउट पे, रेजिस्टेंस पे एंड ऑल दोस, अगर ये ट्रेडिंग वगैरह सही है, देन यू कैन मेक ए प्रॉफिट इन 5 minutes itself. यू डोंट नीड टू वेट. जैसे यहाँ पे wait, you don't not wait for 10-15 minutes if you are doing scalping to take more profit from market. अगर करना है तो स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल करके जाओ, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो कट जाएगा. अगर कंसोलिडेशन हो रहा है तो कट जाएगा. ओके, तो इट्स बेटर टू एग्जिट. नाउ विच काइंड ऑफ ट्रेड यू कैन स्टे. जैसे ये देखो मूवमेंट आया, ये मूवमेंट आया, आप पैसे में कमाने लगे. ये मूवमेंट आया, सपोर्ट किया, पैसे कमाने लगे. यहाँ पे एग्जिट करो, ठीक है, यहाँ पे एग्जिट करो या फिर वेट करो. दैट मीन्स
यहाँ पे स्टॉप लॉस, पिछले कैंडल का हाई पे स्टॉप लॉस लगा के छोड़ो। जनरली स्कैल्पर, आज स्कैल्पर मैं क्या करता हूँ, whenever I might trail my stop loss, if you run a bigger trade, इसका मैंने ऑलरेडी स्ट्रेट डाई वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं कि स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है, जो स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो स्विंग हाई पे ट्रेड होती है। बट इफ यू आर डूइंग स्कैल्पिंग, यू शुड ऑलवेज टेक ए प्रीवियस कैंडल्स हाई एज स्टॉप लॉस एंड देन लीव द मार्केट। नाउ ये यहाँ पे कैप्चर, ये फटाफट देके जाएगा। अगर इसको मूव करना होगा ना मार्केट, ये फटाफट देके जाएगा, उस दिन आपकी लॉटरी लग जाएगी एज ए स्कैल्पर। ओके, अदरवाइज आप छोटा छोटा प्रॉफिट लेके जाओ। कभी तो मैं यहाँ से यहाँ तक पकड़ता हूँ, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, मार्केट स्टॉप लॉस हिट किया, ऊपर चला गया, आई एम स्टिल हैप्पी बिकॉज यहाँ से यहाँ तक कि मेरा 50,000 रुपये बन जाता होगा। ओके, 40 to 50,000 आई कुड ईजिली मेड फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड डन। लेट मार्केट, फिर मार्केट को जिधर जाना है जाने दो। ओके, आई डोंट बॉदर। ओके, क्लियर। नाउ टू आंसर द क्वेश्चन फर्स्ट एंड बिफोर गोइंग टू द अदर टॉपिक्स, कि what are the things that we need to study in price action to make this kind of decision in while doing an entry। तो उसके लिए मेरा एक स्ट्रेट डाइव का सीरीज़ है। इफ़ यू से हियर देयर इज इन माय यूट्यूब चैनल देयर इज ए स्ट्रेट ड्राइव सीरीज, जिसमें episode 02, if you look at how and what a price action। okay, so if you look at this video here, I have given you a list, this is a 1 hour video list कि आपको प्राइस एक्शन में क्या क्या पढ़ना चाहिए, what you should study in an price action। okay, अच्छा, ये मैं निफ्टी में एग्जांपल दे रहा था, बट ठीक है, पैटर्न सेम है। मतलब बैंक निफ्टी में भी ऐसा पैटर्न, आइडियली यू शुड नॉट सेल। अरे साउंड क्यों कर रहे हो तुम लोग? So you should not actually sell, you should actually buy here। okay, right। now this is a nifty example, ये बैंक निफ्टी में भी बहुत काम करता है। and as I say in the group before also, कि प्राइस एक्शन की जो कॉन्सेप्ट होती है, they are not stock specific, right। any stock, any index that you can apply these concepts, price action concepts, right। now considering these examples, go and study the list that I have given in the price action video, that what you need to study। The next topic that we would go actually here, कि what are the, जैसे डे चालू होता है, ये तो डे के बीच में हो गया ना, यू आर डूइंग स्कैल्पिंग इन बिटवीन द डे मार्केट का। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे। नाउ जब डे स्टार्ट होता है, हाउ यू कैन फॉर्म ए व्यू, एक व्यू तो हमारी फॉर्म होती है। या दैट इज सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेक इज बेसिकली बिफोर यू गो टू एन इंट्राडे ट्रेडिंग, मेक योर ट्रेड प्लान्स। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, ओके, मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसमें आपको मैं बताता हूँ जनरली एट व्हाट लेवल आई वुड लाइक टू ट्रेड, राइट। दैट मीन्स सेल किस लेवल पे लूँगा, बाय किस लेवल पे लूँगा, वो एक व्यू आपका होना चाहिए। इज इट रिक्वायर्ड फॉर स्कैल्पिंग? प्रोबेबली नॉट, नो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर स्कैल्पिंग। बट अगर स्कैल्पिंग करते करते आपको बड़ा पैसा बनाना है तो दो व्यूज़ काफ़ी हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे निफ्टी में एंट्री किया, बैंक निफ्टी में मैंने ये बहुत बार किया है। मैं बोलता हूँ कि R1 तक आपको रुकना है। स्कैल्पर अगर होते तो आप यहाँ पे निकल जाते, ओके ना। अगर आप व्यू के साथ आ रहे हो एंड यू आर रेडी टू गो फ्रॉम मार्केट विद ए वेरी मिनिमम प्रॉफिट, देन यहाँ पे अगर छोटा स्टॉप लॉस प्रॉफिट आप रख सकते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो मार्केट यहाँ पे आप एक्चुअली एग्जिट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे आप स्कैल्पर से लॉन्ग टर्म स्कैल्पर बन सकते हो आइडियली, जहाँ पे ट्रेड को आप कन्वर्ट कर पाते हो। तो ट्रेड कन्वर्शन इज एन आर्ट, ओके, ट्रेड कन्वर्शन इज एन आर्ट। Now people can ask question, how many times we can convert the trade? So I generally convert 50% of my trade from scalping to long term, okay। तो उतना अगर आप कर सकते हो तो that is better, okay। तो उसमें क्या होता है कि आपको पैसे जो मिलने के चांसेस होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, ओके। इवन इफ इट हैज फॉल हियर, ये फिर ऊपर गया है तो यू कुड हैव गेन्ड एक्चुअली दिस मच ऑफ प्रॉफिट अगेन, व्हिच इज अ बिग नंबर एनीवे, राइट, ओके। Now the second point that I was trying to make while you are doing, make your trade plans a day before, okay। रात में प्रिपेयर करके चार्ट वार्ट बना के रखो कि if market is going to move like this, I want to do my trades like this। That is converting your scalping to a little bit long term scalping trade, okay, for higher profits। Number 3 is
इफ़ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड दैट, लेट्स से यू आर एंटरिंग इनटू द डे लाइक दैट, ओके, फिर तो आप प्रॉपर स्कैल्पिंग ही करोगे, छोटे छोटे पॉइंट लेके जाओगे डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस एक्शन एंट्री पॉइंट्स, ओके ना। उस केस में as a day trader, what are the things that I generally look at if I'm just doing absolutely scalping और कुछ कर ही नहीं रहा, I'm not doing anything else? My favorite trades without any plan is gap and go and reversal, and this is inside intraday I'm talking about, okay, no positional scalping itself. ये दोनों पे आपको ट्रेड करना है, गैप एंड गो एंड रिवर्सल। मैंने पहले भी बोला कि जो स्कैल्पर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम रिवर्सल्स ट्रेड लेते हैं, काउंटर ट्रेड, बट देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन ए रिवर्सल ट्रेड एंड मेकिंग एंड काउंटर ट्रेड। वो क्या होता है मैं बताता हूँ। गैप एंड गो पहले बता देता हूँ। गैप एंड गो क्या होता है, जनरली मार्केट गैप अप हुआ, जैसे ये गैप अप हुआ, इट डजंट कम डाउन, ऊपर साइड ही जाता है। मार्केट जैसे नीचे गैप डाउन हुआ एंड इट डजंट गो अप, इट कम्स डाउन, ओके। तो डेली में अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा गैप एंड गो क्या होती है, ओके। यहाँ पे देखो, गैप डाउन एंड गो, गैप डाउन गो, गैप डाउन गो, ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम मिलेगा ये आपको, मैं इजी वाला ले रहा हूँ, गैप अप गो, गैप अप गो, गैप अप गो, गैप अप गो, गैप अप गो। इस तरह की अगर ट्रेडिंग आपको मिलती है, लुक आउट फॉर दोज ट्रेड्स। दैट मीन्स हाउ डू यू विल आइडेंटिफाई दैट द मार्केट इज डूइंग ए गैप एंड गो काइंड ऑफ ट्रेडिंग? सिंपल, अगर गैप अप होता है द फर्स्ट 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स मार्केट नीचे नहीं आता है, दैट मीन्स देर आर हाई प्रोबेबिलिटी, इट्स नॉट लाइक कि मार्केट 11 बजे के बाद नीचे नहीं आएगा या 1 o'clock के बाद नीचे नहीं आएगा, आ सकता है, बट देयर इज़ ए हाई प्रोबेबिलिटी दैट मार्केट विल स्टे अप, ओके। सेम थिंग विथ गैप डाउन। गैप डाउन हो गया और मार्केट पहला आधा घंटा 40 मिनट ऊपर नहीं आ पाता है, मतलब डे का है नहीं काट पाता है, देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स 70% प्रोबेबिलिटी इज़ देयर कि मार्केट नीचे ही जाएगा, ओके। इफ यू आर trading against this concept, this is called ideally counter trading, okay, counter trading on a daily time frame, counter trading on a smaller time frame, जो मैं आपको पहले भी बोला था, what people do, scalpers can do that without looking at anything, but make sure that you have to be very very fast in that counter trading, okay। for example यहाँ पे मार्केट आया, okay, यहाँ पे मार्केट गिर रहा है, आपको यहाँ पे पॉजिटिव साइन दिखा, यू कैन टेक ए काउंटर ट्रेड विद ए वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, और ये प्रॉफिट देके जाएगा तो आपको बोनस मिलेगा, ओके। दैट मीन्स 2-3 मिनट्स के अंदर आप प्रॉफिट लेके निकल जाओगे, आइडियली रेस्ट इज बोनस, ओके। दैट इज व्हाट काउंटर ट्रेडिंग, दैट मीन्स मार्केट इज कमिंग डाउन एंड देन यू टेक ए ट्रेड एंड मार्केट, यू आर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो अप, ओके। सेम हियर, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, निफ्टी में हो रहा है, ये बैंक निफ्टी करते हैं, एक ही बात है, कहीं पे भी करें हम लोग, मार्केट ऊपर जा रहा है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू कम डाउन हियर, जैसे यहाँ पे हमारी फ्राइडे को शायद R3 थी, तो यहाँ से मार्केट केम डाउन। ये फर्स्ट क्वेश्चन पीपल आस्क मी कि सर ये रिवर्सल आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट मार्केट विल रिवर्स फ्रॉम देयर। So for identifying that, you look at my videos, the way I keep on my label. Generally, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो just look for support and resistance levels for reversals for the time being. Okay, support and resistance, and draw your lines of latest swing high and swing lows. ये हमारी swing low है, ये देखो यहाँ से रिवर्सल दिया ना, मार्केट was falling down, यहाँ से रिवर्सल एंड लुक एट कितना पॉइंट ये ऊपर गया, ठीक है। तो हमें तो आज स्कैल्पर तो इतना भी नहीं पकड़ना है, यहाँ तक पकड़ लिया तो भी बहुत है, ओके। कुल मेक श्योर दैट स्कैल्पिंग में आपको बड़ा पैसा नहीं बनाना है अनलेस द योर क्वांटिटी इज बिग, ठीक है। नाउ हियर व्हाट वी नीड टू डू इन स्कैल्पिंग इज वी नीड टू डू इंक्रीज द सक्सेस रेशियो इन आवर स्कैल्पिंग, दैट इज द सीक्रेट, अदरवाइज पैसे आपके बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। कुल नाउ यहाँ पे देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस डालो या स्विंग हाई लो के ये डाल के रखो लाइंस,
लाइन ड्रॉ करके रखो, मार्केट मोस्ट प्रोबेबली वहाँ से रिएक्शंस देता है। ओके, मार्केट मोस्ट प्रोबेबली, मैं एक एग्जांपल देता हूँ फ्राइडे का। ये हमारे ग्रुप में एक बंदे ने किया था, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेल दिया था, तो यहाँ पे एक सेल हमारी थी, मैंने बोला था यहाँ पे बैंक निफ्टी सेल आएगा, बिकॉज दिस वाज आवर वन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। देखो बैंक निफ्टी सेल दिया है यहाँ पे, क्वाइट ए गुड सेल, 23,440 टू 23,340, 100 पॉइंट सेल एज ए स्कैल्पर। अगर ये आप पकड़, मतलब यहाँ पे आपको पता है कि पहले से आप प्लान करके रखे हो कि यहाँ पे मैं सेल लूँगा, आपने सेल ले लिया, लेट्स से फ्यूचर ले लिया, यहाँ पे 100 पॉइंट्स के आसपास ये गया, आपको टारगेट लगा के रखनी थी। अगर 80 पॉइंट्स हमारा टारगेट है, और अगर 80 भी नहीं रखनी तो 40 रख दो, आधा 1000 पॉइंट इफ़ यू वांट टू अर्न 40 पॉइंट रख दो तो भी मिल जाता, 80 पॉइंट अगर रखते तो भी फ्यूचर में मिल जाता। जस्ट इन दिस मूव विच डजेंट हैव एनी वैल्यू इन द एंटायर ट्रेडिंग डे इन फ्राइडे, सबसे कमज़ोर कैंडल मेरे ख्याल से यही दो है, ये दो, अदरवाइज बाकी सब सॉलिड चीज़ें हैं। ठीक है, क्लियरली समझ में आ रहा है? तो आज स्कैल्पर इतने बड़े बुल मार्केट में भी मैं सेल में पैसे बना के निकल जाता, एंड उस दिन प्रॉफिटेबल होके भी निकल जाता। हाँ, बड़ा पैसा नहीं बनाता है, अलग चीज़ है, लोग मार्केट में यहाँ से यहाँ तक बड़ा पैसा बनाए होंगे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने मेरे अकाउंट में कितने पैसे बनाए आइडियली। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग में भी आप पैसे बना सकते थे, और ये कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग है, आपको पता, जबकि ये हमारी ये कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग तो थी, मैंने बोला था कि थर्सडे को ये मूव देगा, बट एनी फॉरगेट दैट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो जहाँ जहाँ पे आपकी रिवर्सल आ सकती है, कहाँ कहाँ पे रिवर्सल आ सकती है, पिवट में रिवर्सल आ सकती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में रिवर्सल आ सकती है। ओके, तो अगर आप सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस और पिवट के बेसिस पे भी ट्रेडिंग करोगे आज स्कैल्पर, एंड यू कैन कंट्रोल द ग्रिड, तब भी आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट छोटे छोटे बना सकते हो। ओके, विदाउट एनीबॉडीज हेल्प। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? नाउ लेट्स टेक द क्वेश्चन टू द नेक्स्ट लेवल। लेट्स से ये मार्केट यहाँ तक मूव किया है, ठीक है, और आपकी एक रेजिस्टेंस यहाँ पे R3 थी एक्चुअली, उस दिन यहाँ पे एक्चुअली अपना R3 था। अगर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ तो आप देख सकते हो, यू शुड सी एन R3 हियर, ये सी, यहाँ पे मेरी R3 थी उस दिन की। ओके, और मैं CPR की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं सेल लेता, ओके, जनरली आपको थोड़ी सी जनरल नॉलेज भी यहाँ पे लगानी पड़ेगी कि बैंक निफ्टी की डेली रेंज होती है 607 पॉइंट्स होती है, ऑलरेडी 700 पॉइंट्स दे दिया था इन ए सिंगल मूव विदाउट एनी बिग रिट्रेसमेंट। तो आपकी थ्योरी क्या हो जानी चाहिए थी आप आज स्कैल्पर कि R3 टच किया, चलो मैं R3 से एक सेल लेता हूँ। R3 से आप एक सेल लेते, कहाँ तक लेते? R3 से सेल लेना तो ईजी है, मैंने बोला था ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस में आप सेल ले लोगे, स्कैल्पिंग में ये पैसा बना देगा, जरूर ये थोड़ा बड़ा पैसा दे दिया, बट ज़रूर नहीं कि यहाँ तक भी आप निकल सकते थे, फ्रॉम 794 टू 701, 100 पॉइंट्स, अगेन 80 पॉइंट्स इन फ्यूचर ईजिली आप लेके जा सकते थे, और कोई मूव कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं थी। ये वाली मूव भी यहाँ से यहाँ तक भी कैप्चर कर लेते तो आपके 1 लाख के कैपिटल में, मतलब 1 लाख तो पूरा डिप्लॉय नहीं करते, 2 लॉट बैंक निफ्टी में आप 2000 रुपये लेके जा सकते थे यहाँ से यहाँ तक, दैट्स इट। ठीक है, दैट इज़ व्हाट एक्चुअली द आर्ट ऑफ स्कैल्पिंग इज। ओके, कूल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ चलो मैंने यहाँ पे सेल ले लिया, ठीक है, तो मैं बेसिकली टिकूंगा कब तक? ओके, रिवर्सल में जैसे मैंने बोला गैप एंड गो ऑलरेडी बोला आपको, ठीक है, गैप एंड गो को मैंने, इट्स ए वेरी वास्ट टॉपिक, मैंने तो सिर्फ एक वीडियो में जितना छोटा सा हो सकता है मैंने आपको उतना बताया है, एक ट्रिक और दूंगा लास्ट में, अदरवाइज कुछ क्वेश्चन है तो हम उसको ग्रुप में कवर कर सकते हैं, डोंट वरी। ओके, तो ये जो है हमारी रिवर्सल की टेक्निक, ये रिवर्सल की टेक्निक में टारगेट मेरे कितनी होनी चाहिए? इट्स ए वेरी कॉमन क्वेश्चन इवन एज ए स्कैल्पर, ठीक है, तो उसका जो आंसर है, द आंसर इज फिबोनाची। ओके, तो यहाँ पे अगर आप मूव लोगे, द टारगेट इज अराउंड 23%, यहाँ पे कितना है 648, 790 to 650, 140 points, 120 points in future. You could have taken the target here. Now why? I'll tell you why. मेरा जो एक्सपीरियंस है रिवर्सल ट्रेड्स में, इफ़ यू आर यूजिंग फिबोनाची,
what are the percentages that we have in Fibonacci? This is 23.5, this is 38. Okay, so I consider it as 25. This is 40, 25, 40, 50, 70, 75, 78 के जगह 75. Okay, and then you have 100% retracement. Okay, ये जो थ्योरी है इसमें क्या होता है कि 25% रिट्रेसमेंट जो होती है इसकी गारंटी मोर देन 90% होती है, एंड दैट इज वेयर इट इज गोइंग टू हेल्प यू एज ए स्कैल्पर. इफ यू लुक एट 40%, इट इज बेसिकली अराउंड 70% के आसपास ये सक्सेस है. दैट मीन्स 30% ऑफ द टाइम मार्केट यहाँ तक ना पहुँचे फिर ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है. ओके, देन यू हैव 50%, then you have 75%, sorry 68%, which is basically 65%. then you have 75%, which is around 78%. इतना तक हम जाते हैं. these are very rare. 50% तक आ जाता है, मतलब this आधा टाइम आएगा एक्चुअली. ओके, एंड हियर आई थिंक इट इज़ अराउंड 20% and 75 is around 10% of the time. This is the number. This defines the success. That means if you are taking a trade in reversal and if you put your target according to the 25% of the retracement value of the latest swing and high and low, ये टारगेट आपको ये 90% ऑफ द टाइम देके जाएगा. 90% ऑफ द टाइम आपको देके जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर सक्सेसफुल ट्रेडिंग. क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाता है, मार्केट ऐसे सीधा तो नहीं जाता है, ठीक है, मार्केट वेव्स में जाता है, ठीक है ना. जैसे आपको ये दिख रहा है, ये तो एवरीबडी नोज नो, मार्केट वेव में ऊपर जाएगा, रिट्रेस करेगा, ऊपर जाएगा, रिट्रेस करेगा, ऊपर जाएगा, रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा. इवन इफ इट इज़ ए बुल रन, इवन इफ इट इज़ ए बुल रन, इट विल गो अप, रिट्रेस, गो अप, रिट्रेस, गो अप, रिट्रेस, गो अप, लाइक दैट, राइट. ये जो रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट की जो वैल्यू है वो हमको पकड़नी है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दैट रिट्रेसमेंट. जैसे देखो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस पे सेल थी, दिया ना सेल इसने, ये रेजिस्टेंस थी उस दिन की, R1 था, सेल दिया. कितना लेना है मेरे को सेल? ओके, फिबोनाची यहाँ पे अगर लगाओगे, ये लेटेस्ट स्विंग हाई, स्विंग लो, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी 25% के आसपास हो जानी चाहिए. तो यहाँ पे अगर ले रहे हो, इसका 25 ले लो, या यहाँ पे निकल सकते हो. आई एम नॉट सेइंग कि और पैसा नहीं दे सकता था मार्केट, मार्केट दे सकता था, बट 23% का अगर टारगेट रखोगे तो द सक्सेस हिट रेशियो वुड बी 90%. ओके, उसका ध्यान देना. अब जो एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग में दिया था मगर ड्रम वाले का, 25%, 25%, 25%, 25% एवरी डे, पूरा मंथ भर में, एक्सेप्ट 5 डेज जहाँ पे आपकी ट्रेडिंग गलत होगी, देन आपका 1 लाख, मेरे ख्याल से 1,60,000 बन सकता है पॉसिबली. बट अगर आप उसको 50% के आसपास लेके जाओ तो देयर इज ए चांस दैट वो 1,60,000 की जगह 1,40,000 बनेगा, क्योंकि 50% ऑफ द ट्रेड में आपको लॉस हो जाएगी. क्लियर? ये थ्योरी समझ में आ रहा है आपको मैं जो बता रहा हूँ? तो ट्राई टू, मैं ऐसा करता हूँ रिवर्सल ट्रेड में. अगर सुपर फास्ट स्कैल्पिंग अगर मैं लेना चाहता हूँ, आई जनरली टेक ए टारगेट ऑफ दिस मच, एंड दैट इज द सक्सेस ऑफ माई ट्रेडिंग इंट्राडे में. ओके, एवरीबॉडी इज क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताई है, तो उसको याद रखना, इसको भूलना मत. ओके, क्लियर ना? इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है तो हम ग्रुप में लेंगे. ओके, कि टारगेट आपकी कितनी होनी चाहिए, ठीक है, रिवर्सल्स में. हाउ डू यू फाइंड रिवर्सल? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू, जैसे मैंने आपको एंट्री का बताया था, राइट, ब्रेकआउट पे, रीटेस्ट पे, ट्रेंड लाइन पे, चार्ट पैटर्न पे, मैंने इतने सारे एग्जांपल दिए थे ना, एंड देयर आर अदर थिंग्स विच यू नीड टू लर्न बाय योरसेल्फ. ना यहाँ पे आपको रिवर्सल कैसे पता चलेगा? एक तो टॉपिक मैंने आपको बता दिया, रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे रिवर्सल. सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल का. तो मार्केट ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस पे सेल करोगे, सपोर्ट में आ रहा है तो सपोर्ट पे बाय करोगे, नीचे अगर आ रहा है. दैट इज़ वन ट्रिक. ओके, रिवर्सल का. द सेकेंड ट्रिक इज आइडियली इज योर अमाउंट ऑफ मूवमेंट. जैसे यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी 600 पॉइंट्स की मूवमेंट दी है, दैट मीन्स, और यहाँ पे R3 आ गया. जितना एडिशनल पैरामीटर आपका कॉमनली यूज होगा उतना सॉलिड आपका ट्रेड होगा, सक्सेस रेशियो उतना ज़्यादा होगा. R3 भी है,
700 पॉइंट्स की मूवमेंट भी हो गई है, तो 90% प्रोबेबिलिटी दैट मार्केट विल फॉल डाउन. ओके, तो शेयर मार्केट में तो इट इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी ट्रेड. ऐसा ज़रूरी नहीं था कि मार्केट उस दिन यहाँ पे गिरता, ये और भी ऊपर जा सकता था, बट गोइंग अप द प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 10%. ठीक है, तो उस दिन शायद आपका स्टॉप लॉस कट भी जाता था. स्कैल्पिंग में तो नहीं करता ऑब्वियसली, क्योंकि ये थोड़ा रिट्रेस करके फिर ऊपर जाता, दैट्स ए डिफरेंट थिंग. बट अगर स्टॉप लॉस कट भी जाता ना तो दैट बिकम्स ए लूजिंग ट्रेड. बट 90% चांसेस ये था कि ये यहाँ से गिरे. दैट्स वी कॉल्ड इज दैट हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड. ऑलवेज ट्राई टू एंटर इवन एज ए स्कैल्पर विथ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, जहाँ पे आपको सक्सेस रेशियो ज़्यादा होगा. अगर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड में आप एंटर नहीं कर रहे हो, यू आर एंटरिंग समवेयर इन बिटवीन, मेक श्योर दैट यू एग्जिट फ्रॉम द मार्केट सुपर फास्ट. ओके, दैट मीन्स आइडियली ये स्कैल्पर कितना, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग पूछते हैं आइडियली ये स्कैल्पर मार्केट में कितना टाइम रहना चाहिए. इफ यू आर एंटरिंग इन द मार्केट एज ए स्कैल्पर विदाउट एनी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस, ओके, जितना हमने अभी तक लगाया है, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, ये बोला जो भी है, यू शुड नॉट स्टे ऑन द ट्रेड मोर देन 1 मिनट. ओके, ट्रेलिंग कर सकते हो, अगर ट्रेंड आपके फेवर में आ गया देन यू ट्रेल, अदरवाइज डू नॉट स्टे इन द ट्रेड मोर देन 1 मिनट इफ यू आर जस्ट एंटरिंग ब्लाइंडली एज ए स्कैल्पर. Now there are two advantages to it. इंडेक्स में तो कभी कभी आपको ये हिट करा देगा लॉस. MCX में ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी काम करती है, स्पेशली क्रूड वगैरह में, वर द मूवमेंट इज लोअर और मूवमेंट बोथ साइड में होता है. दैट मीन्स आई कैन एंटर इन क्रूड एनी वेयर आई वॉन्ट ब्लाइंडली एंड कीप ए टारगेट फॉर 5 पॉइंट्स. एक एग्जाम्पल लेते हैं क्रूड का. अगर आप लोगे यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रेड कैसे करना है. ये आपको देखना पड़ेगा कौन से स्टॉक या स्क्रिप्ट में कर रहे हो, दैट इज़ इम्पोर्टेंट. देखो मैं यहाँ पे बीच में ना कहीं पे भी घुस जाऊँगा. लेट्स टेक एनी वेयर, ये आते हैं, यहाँ पे लेते हैं. मैं सबसे छोटे वाले जहाँ पे कंफ्यूजिंग एरिया है वहीं पे घुस जाता हूँ. लेट्स से मैं यहाँ पे एंटर किया, ये कैंडल मेरे को ग्रीन दिखी, मैंने यहाँ पे बाई करा. लेट्स से 4091 पे मेरी बाई थी, टारगेट मेरी 5 पॉइंट की है एज ए स्कैल्पर. 10 पॉइंट ऐसे होता है क्रूड में, 10 पॉइंट इज कंसिडर्ड एज ए स्कैल्पिंग पॉइंट. 10 पॉइंट्स ले लो, 4091, ये देखो मार्केट ने मौका दिया आपको. अरे बहुत ज़्यादा, अच्छा सॉरी ये डेली टाइम फ्रेम. हम 5 मिनट्स में जाते हैं एंड लेट्स एंटर इनटू समवेयर बीच में कहीं पे भी. ओके, लेट्स डू दैट. मैं आपको बताता हूँ कैसे आप ब्लाइंडली स्कैल्पर्स कैसे काम कर सकते हैं. द ओनली थिंग दैट यू नीड टू मेक श्योर कि आपको मग भरना है, मग, ड्रम नहीं, एज ए स्कैल्पर. अगर वो फंडा आपको पता है और आप स्कैल्पिंग कर रहे हो ब्लाइंडली, तो भी यू आर ए सक्सेसफुल ट्रेडर. ओके, चलते हैं कहीं पे भी, बीच में कहीं पे भी घुस जाएंगे. रुको, कहीं पे भी कंसोलिडेशन एरिया में यहाँ पे घुसता हूँ मैं. लेट्स से यहाँ पे बाइंग आई, यहाँ पे घुसता हूँ, ब्लाइंडली घुस गया मैं. 2932, 10 पॉइंट का टारगेट दिया. ऑफ कोर्स ये 2942, हाँ यहाँ तक दिया, 37 तक दिया, 5, इसलिए मैं 5 पॉइंट बोल रहा था. तो यहाँ पे अगर मैं घुसता हूँ, ये बाइंग में ग्रीन कैंडल दिखा, बाइंग 2933 पे घुसा, 5 पॉइंट 2938 ब्लाइंडली. ठीक है, अपर साइड दिया, मार्केट से निकल लिया. ठीक है, ये अगर नीचे आता, ये अगर नीचे आता तो भी ये 5 पॉइंट देता. देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पे घुस गया फॉर एग्जांपल. ठीक है, सेल में घुस गया यहाँ पे 2935 आई एंटर्ड. ठीक है, सॉरी यहाँ पे बाइंग में घुसा, उल्टा ट्रेड में ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल. लेट्स से बाइंग में तो घुसूंगा नहीं, रेड कैंडल है, ग्रीन वाली, ये बड़े बड़े ट्रेड दे रहा है यार. आई एम लुकिंग फॉर वेरी स्मॉल ट्रेड्स, वेरी वेरी स्मॉल ट्रेड्स. हाँ ये देखो यहाँ पे ग्रीन बनी, आज स्कैल्पर में घुस गया, इधर इधर ग्रीन में घुस गया. 2918 दिया, 23, 5 पॉइंट दिया, डन. उसके बाद मार्केट को जाने दो, किधर भी जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और देखते कहीं पे घुसते हैं जहाँ पे छोटे ट्रेड हो रहे हैं. यहाँ पे सेल में, यहाँ पे देखो, यहाँ रेड बनी, यहाँ पे घुस गया 2932. पाँच पॉइंट नहीं दिया, 4 पॉइंट दिया. ओके, 4 पॉइंट दिया. ठीक है, 2932, हाँ दिस इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल. 2932, हाँ यहाँ पे 4 पॉइंट ही दिया, 5 पॉइंट नहीं दिया.
ठीक है, अपन क्या करेंगे, ये जैसे इस दिन शायद अपना स्टॉप लॉस उठ जाता था, जैसे ही ये बड़ा कैंडल बनेगा हम निकल लेंगे, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में निकल लेंगे। बट दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि कहीं पे भी घुस जाओ क्रूड में, ये आपको 5 पॉइंट आराम से दे देगा। सिमिलरली आप बैंक निफ्टी में अगर 20 पॉइंट लेना है, कहीं पे भी घुस जाओ 20 पॉइंट तो दे ही देगा, कहीं पे भी घुस जाओ, यहीं पे घुस जाता मैं लेट से 190 147, अगर आपको 20 पॉइंट्स ही पकड़ना है। बट ऐसा ट्रेडिंग हम नहीं करते, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आज ए ब्लाइंड स्कैल्पर अगर आप मार्केट में इफ़ यू आर एंटरिंग, ओके, make sure that the point I'm trying to make sure is that if trend is not going in your favor, do not stay more than 1 minute if you are entering blindly as a scalper. Clear everybody? Okay? देखो बातें तो हमने बहुत कर ली है, ठीक है, रूल्स मैंने बता दिया है, थोड़े से आपको ये ज्ञान भी दिया है, डेली ट्रेडिंग में कैसे करते हो, एक टिप बोला था लास्ट में बताऊंगा, वो बता देता हूँ, देन विल क्लोज दिस टॉपिक। देखो डिस्कशन करने के लिए तो आई कैन स्पीक ऑन दिस टॉपिक फॉर अनदर 4 आवर्स, ठीक है, देखते हो अगर सीरीज़ बनाएंगे तो बना लेंगे इसका एक, अदरवाइज क्वेश्चंस हम बेसिकली यूट्यूब में ले सकते हैं या ग्रुप में ले सकते हैं, ठीक है। मैं गैप एंड गो का खाली एक टिप आपको दे देता हूँ सो दैट यू रिमेंबर इट फॉर एवर फॉर योर लाइफ टाइम, ओके। जनरली लोग मेरे को जो पूछते हैं ना कि सर हमको BTST के लिए, एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन गैप एंड गो थ्योरी काइंड ऑफ स्टफ, ओके, BTST के लिए हमको आइडियली क्या लेना है, C लेना है, P लेना है। कोई मेरे को पूछेगा, द आंसर वुड ऑलवेज बी आइडियली इफ़ यू वांट टू डू ए ब्लाइंड वन, टेक ए C ऑलवेज, क्योंकि अल्टीमेटली इफ़ यू टेक ए 2 years 3 years period of time, this I also told in my training group, ultimately the market will go up, ultimately अगर ये गिरेगा भी ना, ये ऐसे गिरेगा, फटाक से गिरेगा, देन इट विल अगेन गो अप, जैसे अभी जा रहा है, ठीक है। तो more than 50% ऑफ द टाइम आपका तुक्का लगेगा, दैट मीन्स मार्केट विल आइदर गैप अप एंड गो, और मार्केट विल ओपन फ्लैट एंड गो ऑन द पॉजिटिव साइड। आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। आप इलियड वेव ले लो या कुछ भी ले लो, वेन एवर पीपल ड्रॉ दिस लाइन्स, राइट, फॉर एग्जाम्पल पीपल ड्रॉ दिस लाइन्स, राइट, इफ यू लुक एट हियर, दिस अप मूव इज जनरली ए बिट हायर दैन द डाउन मूव, ऐसे ड्रॉ होती है ना अप ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में इसका उल्टा होता है, बट द डाउन ट्रेंड इज़ वेरी लेस। सो ये जो मूवमेंट होती है, दिस इज़ बिगर कंपेयर टू दिस रिट्रेसमेंट। तो ये भी अगर आपका सक्सेस हो गया, द सक्सेस रेशियो इज़ अराउंड 60%। ब्लाइंड C भी अगर आप लोगे तो, ओके, ठीक है। हाँ, ये है गैप अप हो गया, गैप एंड गो का फंडा देखना है आपको, एंड उसके बाद आपको सेल करना है, रहना है मार्केट में, वो अलग चीज़ है। दोज आर अदर ट्रिक्स कि आपको मार्केट में अगर आपने BTST लिया तो कैसे एग्जिट करना है। दैट काइंड ऑफ BTST इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्कैल्पिंग, दैट मीन्स पीपल, दैट इज अनदर टाइप ऑफ स्कैल्पिंग। तो मैं लिख देता हूँ सो दैट पीपल डू नॉट फॉरगेट। सो BTST एज ए स्कैल्पिंग टूल, ओके। व्हाट वी आर डूइंग, क्या कर रहे हो हम यहाँ पे, we enter the market at 325 and exit at 9:17, let's finish, done. What is the amount of time we are trading? 7 minutes, only 7 minutes of trading, okay. And most of the time you will see that either market goes up or basically market gaps up 60% of the time। खाली यही एडिशनल ट्रिप कर दोगे ना, ऑन ए लॉन्गर टर्म, लाइक 5 साल तक आप ये करते रहे, ये कर रहे हो, ऑन ए लॉन्गर टर्म यू विल सी दैट ओनली दिस स्ट्रैटेजी इटसेल्फ इज गिविंग यू ए गुड अमाउंट ऑफ मनी विद द डिसिप्लिन ऑफ एंटरिंग एट डेज क्लोजिंग एंड एग्जिटिंग एट डेज ओपनिंग, दैट्स इट, ओके। ट्राई करके देखो, ये पेपर ट्रेड करके देखो पहला 6 महीना, फिर मेरे को बताना, ओके, कूल। सो दिस वाज द टिप ऑफ द डे, ट्रिक ऑफ द डे टुडे गाइस। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। यूट्यूब लाइव नहीं कर रहे हैं, सो आई डोंट नो, पीपल माइट नॉट हैव आस्क्ड क्वेश्चन, आई मीन नहीं तो क्वेश्चन पूछ लेते, कोई बात नहीं। वीडियो देखने के बाद वीडियो में कमेंट्स में क्वेश्चन पूछो, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आके क्वेश्चन पूछो जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। एंड देन वी विल लर्न ऑन दिस टॉपिक मोर, दिस इज जस्ट ए स्टार्टिंग। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो इन लाइव, गुड नाइट, जय माता दी।